and students will be going with respect to the formula, students, and hope you are able to get the formula very clearly, students. Okay. If in case if you look at the diagram, students, look over here. That is, I've drawn an inclined plane, students. Think as if the car is on a banked road, students. Okay, because banking is a must. The reason for why do we go for banking? Anyone can tell me? मुझे banking of road क्यों जाना पड़ता है? Students, what's the reason for banking? So what did I tell you, students? Reason क्या बताया था मैंने? Sir, for gaining more speed on same circular path. Very good. And secondly, the friction cannot be trusted. Coefficient of friction cannot be trusted. उसको trust नहीं कर सकते हो ना? तुमने अगर सपोज स्पीड बढ़ाया भी, लेकिन अगर तुम स्पीड से जा रहे हो, लेकिन उसी टाइम तुम जा सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा अगर तुमने लेना शुरू कर दिया तो क्या हुआ? इनर रिएक्शन फोर्स कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू आउटर, एंड द कार इज गोइंग टू टॉपल. वन कंडीशन. सेकेंडली, अगर फ्रिक्शन सही नहीं है बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, then also you will topple. So that's why we need to gain speed in that particular length of circle. So we go for banking. And banking ka reason kya hai? The outer end of the road is raised as compared to that of inner, and that is called as banking. So अंदर का reaction force अभी all the time maintain रहेगा with respect to outside. Students, और कहाँ पे banking होता है? Do you know where exactly banking is considered? Other than car to move on a circular road, where exactly you have come across banking? Students, ये भी बताया था मैंने. Do you all know it? Students, do you all know? Anyone? Yash, Vishal, Tejas, Soham, Sham, you were absent in the last lecture. Maybe Sir, on Tejas. railways. Where you said it, Priya? Railways. Railways, absolutely correct. रेलवे में भी turnings में होता है. See students, she shows smart that is. Now the girls used to answer, they are not answering. Students, you found out somebody new person is answering. Ria is answering. Students, have you seen the difference between the rest of the students and Ria now? Consistently Ria is answering. Very good, Ria. तो वहां पे हम लोग ने रेलवे में पढ़ा था कि अब अगर कोई भी ट्रेन अगर सर्कुलर ट्रैक में जा रही है और उस टाइम पे अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ती है, तो बाहर का ट्रैक अंदर के हिसाब से द ट्रैक इज बेंड. दैट मींस सॉरी, इट्स रेस्ड. देयर इज बैंकिंग गिवन इन द रेलवे लाइंस आल्सो, स्टूडेंट्स, ऑन अ सर्कुलर पाथ, so that the train should not derail. वो पटरी से नीचे नहीं उतरना चाहिए स्टूडेंट्स, जब भी स्पीड गेन करेगा तो. So that's why the outer rail is raised as compared to inner. Students, ये जो theta है ना, angle of banking is small. It's not that direction too large enough. So, but banking certainly helps in gaining speed on a circular path for the given width. Secondly, coefficient of friction cannot be trusted. That's why you need to go for banking. Thirdly, when a vehicle is set to move on a circular path, the reaction force on the inner wheel is always less as compared to that of outer wheel. Therefore, if by chance the speed is increased, if the speed is increased and the banking is not there in the roads, the car will certainly topple. तो ये सारे कारणों के लिए, because of these reasons, we have to go for banking. Otherwise, banking पढ़ने की जरूरत नहीं थी. Give me one more example where banking is considered. One is considered on circular roads. One Ria said it with respect to railway lines के अंदर. और कहाँ पे होता है banking, students? That also I told you, students. और कहाँ पे होता है students banking? Students? Anybody? रिया, तुमने कभी एयरक्राफ्ट देखा है? एयरक्राफ्ट जब ये हवा में टर्न लेता है
तो देखा है एयरक्राफ्ट टर्न लेने के टाइम पे कैसे लेता है टर्न? Yes, sir. ये एयरक्राफ्ट है, ये इसका इनर विंग और ये आउटर विंग. ना सपोज दिस एयरक्राफ्ट इज टेकिंग अ टर्न, तो विल द एयरक्राफ्ट इज टेकिंग अ टर्न कीपिंग एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल और थोड़ा सा बेंड होगा. ये इनर विंग और ये आउटर विंग, अभी देखो, है ना. द इनर विंग इज लोअर्ड, आउटर विंग इज रेज्ड. ये बोलता है बैंकिंग विद द हॉरिजॉन्टल. स्टूडेंट्स, अगर तुमने कोई एयरक्राफ्ट को देखा होगा तो एयरक्राफ्ट थोड़ा सा स्लांट हो जाता है स्टूडेंट्स. जब भी वो टर्न मारता है तो थोड़ा सा अपना डिग्रीज चेंज कर देता है. अंदर वाला विंग नीचे होता है, बाहर वाला विंग ऊपर चला जाता है. अगर बाय चांस अगर कोई एयरक्राफ्ट टर्न लेता है और वो बैंकिंग नहीं देता और वो ऐसे ही जाता है, तो व्हाट्स गोना हैपन? The entire aircraft can topple in air and can reach to calamities also, students. कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? Yes, sir. So students, do keep in mind what is the reason for banking to be. अगर कभी किसी ने पूछा banking का मतलब क्या है, तो सबसे पहले banking in case of roads we consider is the outer edge of the road is raised as compared to that of the inner road, or the outer wheel of the vehicle is assumed to be raised as compared to that of inner. What is the reason for banking of roads? So that to gain speed for the same circular path and for the same width of road. Secondly, since mu cannot be trusted to a great extent, that's why we go for banking of road we consider. Again, is this banking applicable for railway lines also? Yes, when a train is going on a circular path, वहाँ पे भी outer rail is raised as compared to inner. When an aircraft is also flying in air and when an aircraft is taking a circular turn. Students, जब भी शायद I don't know about it whether you're aware about it. Suppose अगर तुम land होते हो मुंबई एयरपोर्ट पे and it's a busy airport, तो कभी कभार लैंड होने के टाइम पे उनको लैंडिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है, यानी उनको परमिशन नहीं देते हैं क्योंकि दूसरे एयरक्राफ्ट होते हैं रनवे के ऊपर. तो वो क्या करता है, टेक लैंड करने के टाइम पे वो आता है रनवे के यहाँ पे, लेकिन उनको पता चलता है कि अभी लैंड नहीं करना है, देयर आर एयरक्राफ्ट. तो फ्रॉम द कम्युनिकेशन टावर वो बोलते हैं कि भाई एक और राउंड मार के आ जाओ. तो वो एयरक्राफ्ट वापस आगे जाता है हवा में और एक राउंड मारता है, टर्न लेके वापस आता है. तो जब भी टर्न लेता है स्टूडेंट्स, so it's going to fly in this manner, the inner and the outer, and that's how it's going to go. It's like that, students. We are trying to derive the formula for banking of road, students. Okay, so the formula we will be considering over here is, now look over here students, ये तुम्हारा कार है, तो ये कार का inner wheel students और ये outer wheel हो गया. Think as if the car is moving on a circular track. Okay, ये है तुम्हारा कार और ये तुम्हारा circular path है. This is how the circular path is. Okay, this is a circular path. The outer end of the road is raised because the tire is raised as compared to the inner by an angle theta. This is how it is. How the car is going to go? So the car is going on a circular path, students. I need to find out the maximum speed. Students, the car is not going up and down. It's going along a circular path. अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे students, तो it's like that. ये जो path है ना, ये पूरा circular है students. ये banking हो रहा है. This is how the banking is taking place. This is how the banking takes place. I'm getting it? And if we see that the road is banked, the outer edge of the road is banked, and the car is moving on a banked road. Students, ये जो तुम्हारा है यहाँ पे है तुम्हारा center of the circular path. क्या ये clear हुआ students? Students, are you getting it, students? The Yes, sir. entire is a circular path. Please understand this thing very clearly. Now, जब भी हमें इसका explanation चाहिए, तो how do you go about it, students? So let us go for the diagram. Now in the diagram, students, do keep in mind that मैंने एक banked road ले लिया students, और ये है तुम्हारा theta as the angle of banking. The entire car को students मैंने एक point mass ले लिया है. Now can you tell me what are the forces acting on this car? कोई बता सकता है क्या क्या forces act हो रहा है कार पे? Students, so can you tell me, it is the weight of the car, and this becomes a normal reaction force. Agreed? And this is the center of the circular path. है ना? The car is performing circular motion, students. The car is performing circular motion.
तो ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ स्टूडेंट्स. इज इट क्लियर? I want to find out maximum velocity for a car on a circular bank road, students. So कैसे करोगे अभी? This is the center of the circular path. The car is moving along the circle, students. It's like this on a banked road. So which बताओ students, will you resolve normal reaction force to get my formula, or will you resolve weight? Students, both are forces. क्या तुम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को रिजॉल्व करोगे या वेट को रिजॉल्व करोगे, और किसको और रिजॉल्व करोगे तो रीजन क्या होगा? एनीबॉडी? Students, what do you resolve? Will you resolve mg or will you resolve n? Anyone? Yes, Ria. Can you answer, Ria? Nobody else is answering. Sakshi, can you answer? Sir, mg. mg. If you resolve, Ria, अगर तुम mg को resolve करोगे तो तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम कार को इंक्लाइन प्लेन की तरह ऊपर नीचे लेके जा रहे हो? रिया, तुम्हें ये समझ में आ रहा है करके मैं कार को कैसे मूव कर रहा हूँ? Yes, sir. सर्कुलर पाथ है ना. देखो, इसका मतलब ऐसा है, ध्यान से देखो. शायद ये क्लियर नहीं हो रहा है तुम्हें. स्टूडेंट्स, अगर मैंने ये डायग्राम ऐसा दिया, उसका मतलब ये ऐसा ऐसा सर्कुलर पाथ है. स्टूडेंट्स, इट्स लाइक दिस. प्लीज पे अटेंशन. ये इंक्लाइन प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, ठीक है. और स्टूडेंट्स, पूरा रोड सरफेस ऐसा है, सर्कल में है. हेलो, ये ऐसा सर्कल में है स्टूडेंट्स. इट्स लाइक दैट. तो तुम्हारी जो कार मूव हो रही है स्टूडेंट्स, वो ये बैंक रोड के ऊपर कैसे कैसे मूव हो रही है स्टूडेंट्स? इट्स गोइंग ऑन अ बैंक रोड, बट द कार इज गोइंग इन दिस मैनर. इट्स गोइंग इन दिस मैनर. इट्स गोइंग ऑन अ सर्कुलर रोड. इट्स लाइक दैट. इट्स गोइंग. ये ऐसे नहीं कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर नीचे जा रहा है. नहीं, ये ऐसे जा रहा है. ये ऐसे जा रहा है. समझ में आ रहा है? दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स, जब भी हमें हमें इंक्लाइन प्लेन की तरह ऊपर नीचे जाना होता तो मैं एमजी को रिजॉल्व करूंगा. यहाँ पे हम किसको रिजॉल्व करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे. किसको रिजॉल्व करेंगे? Normal reaction force. यस. और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखो, अगर मैं एन को रिजॉल्व करूंगा तो ये मेरे कंपोनेंट्स हो जाएंगे. ये थीटा है, ये 90 है स्टूडेंट्स. तो कैन यू टेल मी विच एंगल विल बी थीटा? तुम बोलोगे सर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. क्या इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल? Yes, sir. Okay, now when I resolve this normal reaction force into two components, तो एक हो जाएगा यहाँ पे n cos थीटा, जो कार के वेट को बैलेंस करेगा जब भी कार सर्कुलर पाथ में मूव होते रहेगी. और ये n sin थीटा क्या बन जाएगा? सेंट्रीपेटल फोर्स, जो मुझे चाहिए कार को सर्कुलर मोशन के लिए. स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना तुम्हारा डायग्राम कैसा है. स्टूडेंट्स, ये ऐसे है. सोचो कि ये पूरा सर्कुलर पाथ है. एक छोटा सा मैं ऐसा पूरा एक पाथ दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स. और ये जो सर्कुलर पाथ है ना, ऐसा कोन शेप्ड है. ये ऐसा सोचो कि ये कोन है. और ये जो कार है ना, जहाँ पे आउटर एंड ऑफ द कार इज रेज्ड एज कंपेयर टू इनर. द आउटर एंड इज रेज्ड एज कंपेयर टू इनर. सी द डिफरेंट पार्ट्स. ये देखो, आउटर एंड इज रेज्ड एज कंपेयर टू इनर. और ये जो कार है ना, वो ये है कार स्टूडेंट्स. ये जो कार है ना, इस रोड के ऊपर मूव हो रही है स्टूडेंट्स. ये रोड के ऊपर मूव, और ये जो कार है वो ऐसे जा रही है.
It's going and performing circular motion. तो समझ में आ रहा? It's like that. यानी तुम्हें स्लोप दिखाई दे रहा है, तुम्हें स्लोप है. कार तुम्हारी ऊपर नीचे, it's not I have not drawn a diagram for a car to go up the plane and down. ये laws of motion के हिसाब से मैंने नहीं बोला. मैंने कार को सर्कुलर मोशन में लिया है और ये 3D इफेक्ट दिया है मैंने. अभी डायग्राम क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? व्हाट एम आई ट्राइंग टू शो इट यू ऑल? हाँ स्टूडेंट्स. Yes, sir. इसलिए हम एमजी को रिजॉल्व नहीं करेंगे, हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल जाएगा जो कार से किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ स्टूडेंट्स. तो वन फोर्स इज एन कॉस थीटा, जो किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को. एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल. कैन यू टेक द फॉर्मूला? यस, एन साइन थीटा balances force centripetal. And what is the formula for force centripetal? mv square by r. This is mass of the car. We need to find out the velocity of the car on a circular banked road, and r is the radius of the circular path. n cos theta किसको बैलेंस कर रहा है? सर n cos theta बैलेंस करता है वेट ऑफ द कार को. मुझे किसका फॉर्मूला चाहिए? वेलोसिटी. तो कैन आई डिवाइड द टू इक्वेशंस? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो. डिवाइड करने के टाइम पे करे से n will get cancel out sin theta upon cos theta, tan theta, that is equal to ये m और m cancel हो जाएगा स्टूडेंट्स रेशियोज में. What am I going to get it? V square by rg. Therefore, what's the formula for velocity of a car on circular banked road neglecting friction? Neglecting friction. So what's the formula? Under root r g tan theta. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Whenever somebody asks you students what's the maximum velocity of a car on a circular banked road not considering friction, तो rg tan theta. r क्या है? Radius of circular path. g gravitational acceleration. tan theta क्या हो जाएगा? tan theta क्या होगा? तुम बोलोगे सर आपने बोला था outer end of the road is raised as compared to inner, तो tan theta will be opposite, यानी h upon hypotenuse, that is length of the road, है ना? ये length of the road हो जाएगा. तो कैन आई से स्टूडेंट्स tan theta को कैन आई राइट इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट? व्हाई नॉट? ये देखो ना, ये ऑपोजिट है और एडजेसेंट ये होगा, हाइपोटेन्यूज नहीं होगा. tan theta इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. लेकिन सिंस स्टूडेंट्स, सिंस थीटा इज स्मॉल, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, सिंस हमारे जो एंगल ऑफ बैंकिंग स्मॉल होता है ना, सिंस थीटा इज स्मॉल, therefore tan theta को कैन आई राइट नियरली इक्वल टू sin theta. Yes. Therefore, what exactly sin theta can be written as? Opposite upon hypotenuse, h by L. Absolutely correct. Therefore, what's the formula for Vmax? Formula will be under root R G. Instead of tan theta, now I can write on h by L. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Please, all the students who are into the group, are they clear? There were altogether 27 students. 27 students were there. 3 students have left. 3 students left. There were 27. Initially, the strength was. Students, are you getting it? Ria, are you getting it, Ria? Yes, sir. Okay, and who was responding? Sham, you were responding. Are you getting it? Understanding it? Yes, sir. Okay, who else was responding? Was Tejas or Yash? You all were responding or no? Yes, sir, I was. Okay, fine. So it's the person who will respond, I'll just ask them. The rest who don't want to respond, please, you can leave the lectures and sit at home. Doesn't matter.
हाँ, आलिया had left, बरोबर है, आलिया had left. Can I erase the students? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ अभी? Students, can I erase it? Riya, shall I erase? Yes, sir. Okay. Okay, students, we got the formula for velocity of a car on a circular banked road, and the formula is Rg tan theta, where theta is the angle of banking. Students, V is equal to under root Rg tan theta. क्या पहले भी तुमने ये formula कहाँ पे देखा है, students? Have you come across this formula earlier also anywhere? Sir, in conical pendulum. Very good. That's the tangential velocity. Absolutely correct. Yash. V is equal to under root Rg tan theta is a linear velocity of a conical pendulum along the circular path. वहाँ पे theta is with what? Theta is the angle of whom? Yash, can you tell me? Theta किसका है? Angle of? Theta is the angle made by whom? हाँ, कोनिकल पेंडुलम में थीटा क्या था? यश, डोंट यू थिंक सो कि मैंने बोला था कि पहले पेंडुलम को सस्पेंड करो फ्रीली. देखो, now the students are entering inside Kratu and Om, and now see who's this Kratu? I don't know about it. Students, the bob is suspended freely. हम क्या करते हैं? बॉब को डिस्प्लेस करते हैं at an angle theta with the horizontal, and then it is moving in a conical, है ना? तो पहले हम बॉब को theta by angle, तो theta is the angle with the vertical. तो अगर किसी ने पूछा what is the velocity of a bob of a conical pendulum, linear velocity of a bob of a conical pendulum, then v is equal to under root Rg tan theta. Theta is the vertical. What is the formula for velocity of a car on a banked road? V is equal to under root Rg tan theta. What is theta over here? Theta is measured with horizontal. और कहाँ पे पढ़ा है formula? Same formula. हाँ students. Kratu, are you there, Kratu? Which branch you are from, Kratu? सर फाउंडेशन बिल्डर 2. तो लेट क्यों आया लेक्चर्स में, Kratu? सर वो ये नेट ऑफ था तो मैसेज नहीं आया मतलब. अच्छा, नेट ऑफ था इसलिए मैसेज नहीं आया. ओके. और कौन से ब्रांच से हो? फाउंडेशन बिल्डर 2. नहीं, ब्रांच कांदिवली. मीरा रोड. हाँ, तो मीरा रोड में तुम्हारा रोल नंबर वगैरह नहीं है क्या? तो नहीं सर, अभी तक दिया नहीं है तुम्हें? नहीं दिया, मॉड्यूल नहीं दिया. अच्छा, तो मैम को बोलो कि देंगे करके, उनको बोलो कि सर बोल रहे थे. ओके, she'll give it to you. ओके. ओके स्टूडेंट्स, और ये फॉर्मूला कहाँ पे पढ़ा है? हाँ स्टूडेंट्स, Motorcyclist. वेरी गुड, very good. V is equal to under root Rg tan theta is the velocity of a motorcyclist on a circular road. यश, वहाँ पे थीटा किससे है? थीटा is measured with whom? So it tilts with the vertical. Yes, it's the angle with the vertical. यानी स्टूडेंट्स तीन फॉर्मूलाज हमने exactly same पढ़े हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स देखो, out of so many students who remembered this, इतने सारे स्टूडेंट्स के अलावा कितने स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने? स्टूडेंट्स, जब एग्जाम्स होती है मेजर टेस्ट के अंदर, तो क्यों एक या दो स्टूडेंट्स ही स्कोर करते हैं, है ना?
शायद तुम लोग को भी ऐसा लगता रहो कि जब भी एग्जाम्स होती है तो पूरे रिजल्ट्स में हार्डली 2 या 3 स्टूडेंट्स या 4 स्टूडेंट्स, तो उसका मतलब क्या, पढ़ने वाले ही स्कोर करते हैं स्टूडेंट्स, नहीं पढ़ने वाले कभी स्कोर नहीं करते, फैक्ट है वो। स्टूडेंट्स तुम्हारा स्कोरिंग करना या नहीं स्कोरिंग करना लेक्चर्स के अंदर ही पता चल जाता है स्टूडेंट्स, यही दूध का दूध और पानी का पानी होता है। अगर तुम समझते हो तो तुम आंसर दोगे, नहीं समझोगे तो आंसर नहीं दे सकते हो। और अगर नहीं समझते हो तो और तुम पूछते भी नहीं हो कि भाई ये ऐसा क्यों आया, तो तुम्हारा और लॉस है। ऑनलाइन में तो, ऑफलाइन में तो पूछते हो नहीं, जब भी सामने भी इंटरेक्शन होता है तभी भी नहीं पूछते, अभी भी नहीं पूछते हो। इट्स ईदर वे, एंड ऑन टॉप ऑफ इट यू ऑल डोंट रेफर। स्टूडेंट्स वी लर्न, ये 3 फॉर्मूलाज हम लोग ने पढ़े हुए हैं 3 चीजों में। फॉर्मूला एक ही है, 20 किलो अंडर आजी tan थीटा, लेकिन एक साइक्लिस्ट के लिए पढ़ा था जहाँ पे थीटा इज विद वर्टिकल। फिर सेकंड पढ़ा था हम लोग ने कोनिकल पेंडुलम के लिए, लीनियर वेलोसिटी फॉर अ बॉब इन अ कोनिकल पेंडुलम मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, लीनियर वेलोसिटी जहाँ पे थीटा इज विद वर्टिकल। और अभी हमने बैंकिंग ऑफ फ्लूइड के लिए पढ़ा हुआ है, थीटा इज विद हॉरिजॉन्टल। एग्रीड। और यहाँ पे जो बैंकिंग में था थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं क्योंकि tan थीटा इज नियरली इक्वल टू sin थीटा। ये भी ध्यान में रखना स्टूडेंट्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बाद में बोलना नहीं कि नहीं बोला था। जब भी एमसीक्यूज होंगे और ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो ध्यान में रखना कि ऐसा ऐसे वाले प्रॉब्लम्स भी आते हैं। क्योंकि जैसे तुम्हारा कार टिल्ट होगा ना स्टूडेंट्स, जैसे तुम्हारा कार टिल्ट होगा तो ये इनर व्हील और ये आउटर व्हील, देखो आउटर व्हील हैज रेस्ड, तो शायद ध्यान से सुना, एच बाई एल की जगह पे वो क्या बोलेंगे मालूम है, द आउटर व्हील ऑफ अ कार इज रेज्ड एज कंपेयर टू इनर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील्स इज गिवन टू यू। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इफ आउटर व्हील इज रेज्ड एज कंपेयर टू इनर, उसका मतलब एच दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील्स उसका मतलब एल दिया है, तो एच बाई एल इज गिवन टू यू। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. Okay students, now we speak about velocity of a car on a circular bank road car considering friction students. Okay, who's this now? Ravikant Rai, ये कौन है भाई? हाँ students, do you all know Ravikant Rai? Students, do you all know? Is he a student of? Yes, sir, is a new student. Okay. Okay, fine. Okay, now we go for students. Velocity of a car on a circular banked road considering friction. Yes, anyone? Students, can you derive a relation for this? Now, students, velocity of a car on a circular banked road considering friction. कोई derive कर सकता है students ये relation? अभी हम फ्रिक्शन को कंसीडर करने वाले हैं, पहले केस में कंसीडर नहीं था स्टूडेंट्स, अभी हम फ्रिक्शन को कंसीडर करने वाले हैं। तो अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा बैंक रोड है स्टूडेंट्स, थीटा, ये थीटा है, agreed? The car is going on a bank road students, there is friction. Let us say the car is a point mass students, यहाँ पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे थे, तो यहाँ पे 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे थे, कौन से फोर्स एक्ट हो रहे थे, तो एक बोलोगे सर एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो कार से परपेंडिकुलरली जा रहा था स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है स्टूडेंट्स, है ना। दूसरा कौन सा है सर, वेट ऑफ द कार जो नीचे की तरफ जा रहा था, mg। नाउ स्टूडेंट्स, अगर इसी को मुझे समझना है तो प्लीज पे टेंशन, नाउ आई एम ट्राइंग टू स्प्लिट अप दिस डायग्राम इनटू 2 पार्ट्स। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स,
एक ये वाला मैंने डायग्राम लिया है जहां पे हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। This is your same inclined plane, students, same inclined plane. Same inclined plane, inclined at an angle theta with the horizontal, students. And this is your car. Please pay attention, students. हाँ, अभी देखो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं फ्रिक्शन के हिसाब से कंसिडर करता हूँ तो तुम्हारे हिसाब से व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू, मैं क्या बताना चाहता हूँ? तो स्टूडेंट्स, तुम्हारी जब भी कार सर्कुलर ट्रैक पे मूव होगी, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, जब भी तुम्हारी कार अगर स्पीड गेन करेगी, स्टूडेंट्स, जब कभी भी तुम्हारी कार स्पीड गेन करेगी, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, ओके, जब भी तुम्हारी कार जा रही है सर्कुलर पाथ में, लेकिन अगर वो स्पीड गेन करती है तो कार किस तरफ जाएगी? स्टूडेंट्स, कार विल ट्राई टू गो ओवर हियर व्हेन स्पीड इज मैक्सिमम। यानी कार ऊपर की तरफ से ओवरटेक करेगा, यानी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से होते हुए वो जाएगा। तो फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट होगा? Students, what is the direction of friction? What is the direction of friction? Along an inclined plane and downwards. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट होगा, यहां पे फ्रिक्शन है जब वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन अगर अगर सपोज मैंने बोला कि कार की स्पीड कम हो रही है स्टूडेंट्स, now if I say the speed of the car is decreasing, this is the car moving circular motion, अगर उसकी साथ कार की स्पीड डिक्रीज होगी स्टूडेंट्स, तो इट विल कम डाउन द इंक्लाइन प्लेन, यानी जब भी v मिनिमम होगा तो कार नीचे की तरफ आएगी। अगर कार नीचे की तरफ आती है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होगा? ऑपोजिट, इस तरफ होगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन ओनली आई विल प्रोसीड फर्दर अहेड। सर ये वी मिनिमम का फिर से बोलो। अच्छा, नाउ ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट क्या है मालूम है? ये तुम्हें समझना होगा वेरी क्लियरली फॉर सर्कुलर। वेट अ मिनट, हाँ, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स।
Students, can you see this video? Students, can you see a circular track? See, it's going on the outer side. It's going on the outer side. देखो अभी किस तरफ जा रहा है? सर्कुलर ट्रैक के लिए आउटर साइड, वापस अभी इनर के ऊपर आया. Students, are you getting it? Yes, sir. Okay. Let me put forward one more video in this case. See now. Are you getting it? Can you see it, students? See the banking. Students, did you see the Yes, banking? sir. Car is moving on an inclined plane. ऐसे जा रहा है. Yes. Maximum speed while taking. Now see maximum speed. See the radius of the circular path. See the car. It's going on the outer track, students. See the inner wheel. See the friction causes the motion of the car. और बाहर की तरफ है स्टूडेंट्स, वो बाहर की तरफ चला रहा है, आउटर रेडियस में जा. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखो कहाँ पे जा रहा है, mg कहाँ पे जा रहा है. कैन यू सी इट स्टूडेंट्स? Is it clear, students? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Hope that you are getting it, students. Okay. Students, while going for banking of road, students do keep in mind that if I say that the car is gaining speed, students, अगर मैं बोलूँ कि car is gaining speed, students, then in that case, if it's gaining speed, it's going to go on the outer side, students, and it's like a NASCAR track. Okay. अगर कार सपोज स्पीड गेन करेगी तो बाहर के ट्रैक की तरफ जाएगी, लेकिन अगर स्पीड कम होगी तो नीचे की तरफ आएगी. अगर स्पीड कम होगी ना स्टूडेंट्स तो फ्रिक्शन ऊपर होगा, कार मैक्सिमम स्पीड होगी तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा. हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड, स्टूडेंट्स, कंसीडरिंग फ्रिक्शन. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज द क्वेश्चन, इज द कांसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी हम डिराइव करें स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स आर यू देयर? Yes, sir. अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. अब मैं क्या करता हूँ, पहले ये हम मैं मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए जा रहा हूँ स्टूडेंट्स. आई एम ट्राइंग टू डिराइव फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी. मिनिमम तुम लोग फाइंड आउट करना. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व फॉर दिस. मैं मैक्सिमम का फॉर्मूला दे रहा हूँ स्टूडेंट्स. ओके, तो मैं ना हाउ डू यू गो अबाउट दिस. तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये जो कार है यहाँ पे है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ले लिया, एग्रीड. एक तो वेट ऑफ द कार ले लिया नीचे की तरफ, है ना. कार मूव हो रही है सर्कुलर पाथ के लिए, तो रेडियस इस तरफ जा रहा था स्टूडेंट्स, है ना. ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ पे रेडियस होगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को तो रिजॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स इनटू टू कंपोनेंट्स, क्योंकि ये तुम्हारा थीटा है स्टूडेंट्स. तो अगर मैं आगे प्रोड्यूस करूँ तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो एक तो n cos थीटा हो जाएगा और n sin थीटा हो जाएगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, जो पहला वाला केस Yes, में sir. था. दूसरी बात, अभी यहाँ पे देखो, जब भी कार मैक्सिमम स्पीड के लिए जा रहा है तो फ्रिक्शन किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है. तो देखो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन जब भी इस तरफ जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम फ्रिक्शन को रिजॉल्व करेंगे. अभी स्टूडेंट्स देखो, ये 90 है,
ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो कैन आई से दिस एंगल विल बी थीटा। हाँ स्टूडेंट्स, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो कैन आई रिजॉल्व फ्रिक्शन इनटू टू कंपोनेंट्स? इसको रिजॉल्व करते हैं तो एक होगा हॉरिजॉन्टल, स्टूडेंट्स एक होगा हॉरिजॉन्टल, वो कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, सर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू कॉस थीटा, और एक होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वो कौन सा होगा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू साइन थीटा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंपोनेंट cos थीटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंपोनेंट sin थीटा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स डायग्राम? तो मैं आगे बढ़ू। देखो ना स्टूडेंट्स, ये f है, f को मैंने रिजॉल्व किया दो पार्ट में। स्टूडेंट्स अगर तुम देखोगे तो ये f ऐसे जा रहा था, फोर्स ऑफ स्टैटिक, तो मैंने उसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, ये तुम्हारा थीटा आ गया, है ना। तो एक हो गया मेरा f cos थीटा और एक होगा f sin थीटा, है ना। उसी के साथ में कार इस तरफ है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी होगा। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरफ जा रहा है, तो मैंने एक कंपोनेंट ऊपर ले लिया थीटा के हिसाब से और एक हॉरिजॉन्टल ले लिया, तो ये कौन सा था, n cos थीटा, और ये क्या है, n sin थीटा। n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, ये n sin थीटा। n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, ये दोनों फोर्सेस स्टूडेंट्स, ये दोनों फोर्स जो नीचे आ रहे हैं ना, देखो ना दोनों फोर्स नीचे आ रहे हैं, ये दोनों फोर्स नीचे आके किसको बैलेंस कर रहे हैं, वेट ऑफ द कार। समझ में आ रहा है। और ये जो दोनों फोर्सेस है ना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू cos थीटा एंड द कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये दोनों फोर्स मिला के क्या बनते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। यानी ये दो फोर्सेस दोनों ऐड होके सेंट्रीपेटल फोर्स बनेंगे, और ये दोनों फोर्स एफ साइन थीटा और एम जी दोनों नीचे की तरफ जा रहा है, और एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यस क्लियर सर। हुआ? Are the diagrams clear? Then only I can proceed further ahead. How many students are able to understand? Just raise your hand. And those students who are responding, if they are raising their hands, I'm fine with it. The rest, it's fine. I'm not bothered because the rest of them are not bothered to reply. So even I am also least bothered. Those who are replying, Yash, are you getting it, Yash? Yes sir. Okay, Shyam, what about you? Clear hai? Shyam is not replying. Ria, what about you, Ria? Yes, sir. Okay, fine. 3 students have replied, so I move further ahead. Okay. श्याम क्लियर नहीं है? श्याम, क्या चीज क्लियर नहीं है? हाँ श्याम, क्या चीज क्लियर नहीं है, बता सकते हो? हाँ श्याम, he is not replying at all. You can unmute yourself. That becomes much more all the time to read the chats and then coming back onto the main screen. Students, ये F फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अंदर की तरफ जाता है और वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के कंपोनेंट के साथ में मैच होता है स्टूडेंट्स। तो ये तो फोर्सेस दोनों दोनों ऐड होते हैं स्टूडेंट्स। तो एक तुम्हारा इक्वेशन क्या बनता है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। एक इक्वेशन बनेगा n sin थीटा जो कार और रेडियल इनवर्स जा रहा है, प्लस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन into cos theta is equal to the centripetal force and that is mv square by r. ये तुम्हारा इक्वेशन होगा। दूसरा इक्वेशन होगा स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ देखो,
ऊपर की तरफ देखो n cos थीटा है, वो किसको बैलेंस कर रहा है? चलिए दो फोर्सेस नीचे की तरफ है, यानी यहाँ पे कौन सा है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू sin थीटा प्लस mg, है ना? यानी जब भी कार सर्कुलर ट्रैक में मूव होते हैं ना स्टूडेंट, तो ये सारे फोर्सेस एक्ट होता है। अभी मैं ये फोर्स को इस तरफ ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो कहना से n cos थीटा माइनस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू sin थीटा is equal to mg. Agreed? Agreed? Is Yes. this students? Now if in case if I happen to go for the Yes, sir. formula, तो अभी formulas को कैसे हम करेंगे? Students अभी मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है? मैंने force of static friction. Can you tell me what is the formula for force of static friction, students? तुम लोग ने पढ़ा हुआ है students? Force of static friction. हाँ students, laws of motion में पढ़ा है? What is force of static friction? Mu s into n. हाँ या ना? तो force of static friction को मैं क्या substitute करूंगा? Students, force of static friction को students मैं substitute करूंगा mu s into normal reaction force. तो जहां पे Fs होगा फ्रेंड्स, वहां पे मैं mu s into n रिप्रेजेंट करूंगा। एग्रीड? तो पहला वाला इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा? कहां से लेगा स्टूडेंट्स? पहला वाला इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा? मेरा पहला वाला इक्वेशन हो जाएगा n sin थीटा n sin थीटा प्लस mu s into n cos थीटा which is equal to mv square by r. दूसरा इक्वेशन क्या होगा? n cos थीटा माइनस mu s into n sin थीटा that is equal to mg. क्या ये दो इक्वेशंस ना करने से ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है और ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एवरीवन, Yes, sir. इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे मालूम है? ये दोनों इक्वेशन में लेना स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन ना, ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तुम क्या करो मालूम है स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली व्हाट एम आई सेइंग। स्टूडेंट्स डिवाइड द न्यूमरेटर and the denominator. Students, divide the numerator and the denominator of left hand side of these two equations by n cos theta. By what? n cos theta. तो देखो इसको डिवाइड करो, तो स्टूडेंट्स क्या तुम बता सकते हो? n sin theta अपॉन n cos theta क्या हो जाएगा? tan theta आ जाएगा, आया ना? प्लस डिवाइड बाय n cos theta, तो n cos theta पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो म्यूस बचेगा। फिर इसको इससे डिवाइड करना है, यहाँ पे भी डिवाइड बाय n cos थीटा आएगा, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस डिवाइड बाय n cos थीटा, तो क्या है? दिस बिकम्स mu s tan थीटा इज इक्वल टू, फिर ये रेशियो अगर तुम लेते हो तो m विल गेट कैंसिल स्टूडेंट्स, कहने से v स्क्वायर बाय rg। आ गया तुम्हारा फॉर्मूला स्टूडेंट्स? डिड यू गेट द फॉर्मूला फॉर v? See what's the formula for v? You getting it? Students, the formula for v max is equal to what? Under root, ये देखो rg वहां पे चला जाएगा, tan theta plus mu s upon 1 minus mu s tan theta, and that's the formula for maximum velocity of a car on a circular bank road considering friction. क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? Students, is this formula clear to all of you all? Yes, sir. तो मैंने दो इक्वेशंस लिए, दोनों इक्वेशंस में स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड जो है उस लेफ्ट हैंड साइड को मैंने क्या किया? तो इस लेफ्ट हैंड साइड का ये जो है, ये दोनों का रेशियो है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इसको मैंने डिवाइड किया बाय n cos थीटा, इसको भी डिवाइड किया बाय n cos थीटा,
तो स्टूडेंट्स n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, tan थीटा आ गया। n cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ म्यूस बचेगा। n cos थीटा यहाँ पे भी कैंसिल आएगा तो 1 बचेगा। n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, n गेट्स कैंसिल तो म्यू tan थीटा आ गया। गेट्स कैंसिल, v स्क्वायर बाय rg, v स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ, rg मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा तो rg इंटू ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यूस अपॉन 1 माइनस म्यूस tan थीटा। क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स जब भी अगर कभी भी किसी ने पूछा स्टूडेंट्स फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर, if they ask you find out the formula for maximum speed of a car on a circular bank road, स्टूडेंट्स तो ये ध्यान में रखना, गाड़ी तुम्हारी वर्टेक्स की तरफ से क्रॉस होते जाएगी, ऊपर से जाएगी, ओवरटेक करेगी मैक्सिमम स्पीड के लिए। यानी मैक्सिमम स्पीड के लिए सेंटर से कार दूर चली जाएगी ऑन द बैंक रोड। जब स्पीड कम होगी तो वो सेंटर से नजदीक की तरफ आएगी। तो अगर वो दूर की तरफ जाएगी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी तो स्टूडेंट्स उसका फ्रिक्शन किस तरफ होगा? सब फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट होगा। देखो मैं वापस दिखा रहा हूँ, फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट होगा। ये 90 स्टूडेंट्स, ये 90 माइनस थीटा, तो मैं फ्रिक्शन को अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो ये मेरे दो कंपोनेंट्स हो गए, ये मेरा एंगल थीटा हो गया। तो ये फ्रिक्शन का ये क्या हो जाएगा? सब फ्रिक्शन ये कॉस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा फ्रिक्शन साइन थीटा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, यानी ये पार्ट मैंने बता दिया है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, हाँ सर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज एक्चुअली द कॉस्ट फॉर द कार टू मूव इन अ सर्कुलर रैक। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करूँ इनटू टू कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को रिजॉल्व करूँ इनटू टू कंपोनेंट्स, तो ये मेरा 90 है, ये थीटा है, हमें ये थीटा मिला है, तो स्टूडेंट्स ये भी थीटा होगा बाय ज्योमेट्री, तो सामने वाला ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? n cos थीटा, और ये बन गया n sin थीटा। स्टूडेंट्स n sin थीटा और फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये दोनों मिला के क्या बन गया है? फोर्स सेंट्रीपेटल। ये कौन सा फोर्स बन गया? फोर्स सेंट्रीपेटल, रेडियली इनवर्ड फोर्स। ऊपर वाला फोर्स क्या है? n cos थीटा, वो किसको बैलेंस कर रहा है? ये दो फोर्सेस नीचे की तरफ है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू sin थीटा और mg। तो मैंने दो इक्वेशंस लिख दिए। फिर जैसे मैंने दो इक्वेशन लिखे, रीअरेंज द टर्म्स किया, फिर डिवाइड, फिर मैंने क्या किया, fs को म्यू s इनटू n कर दिया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n cos थीटा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी गॉट द आंसर फॉर वेलोसिटी। होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Is it clear? Yes, sir. Okay, Ria, what about you, Ria? Any doubts? No, sir, I'm getting it. Okay, fine. Please understand very properly. Okay, क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ अभी? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, हमने मैक्सिमम के लिए अभी ये डायग्राम वैसे रख रहा हूँ, मैं ये डायग्राम erase कर दे रहा हूँ। ध्यान से देखना, इक्वेशंस मैंने कैसे क्रिएट किया था। अभी मिनिमम के लिए तुम लोग को करना है और तुम्हें उसका फॉर्मूला निकालना है। तो स्टूडेंट्स कंसेप्ट क्या था, जब भी Vmax के लिए जाओगे तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा। ओके, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डाउन द इंक्लाइन। Okay, when the car is going with Vmax. Now the car is going with V minimum. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अभी फ्रिक्शन किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। चलो अभी ये लेते हुए मुझे बता सकते हो कैसा होगा तुम्हारा डायग्राम? अभी मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ स्टूडेंट्स वापस। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी तुम्हें दो इक्वेशंस मिलेंगे। स्टूडेंट्स कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे भी दो इक्वेशंस मिलेंगे। रीअरेंज करो, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को यहाँ पे भी म्यू एस n इंटू n डालना है,
फिर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n cos थीटा करके रीअरेंज द टर्म्स, तुम्हें v मिनिमम चाहिए. होप दैट यू हैव गॉट इट. व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इट? नाउ वे मिनिमम के लिए तुम क्या करोगे? कार नीचे की तरफ होगी, चलेगा ना? कार को थोड़ा सा नीचे की तरफ बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. फ्रिक्शन किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरफ का है ना. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये हो जाएगा तुम्हारा mg, नीचे की तरफ चला गया, ये 90, ये 90, ये फोर्सेस को एक्सटेंड करो. नाउ कैन यू सॉल्व इट? ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा, क्योंकि ये थीटा है. अभी तुम इक्वेशंस क्रिएट कर सकते हो स्टूडेंट्स. पाथ किस तरफ जा रहा है? सर ऐसा जा रहा है, कार इज गोइंग ऑन अ सर्कुलर पाथ स्टूडेंट्स. तो तुम्हारा सेंटर अभी भी यही है स्टूडेंट्स, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. ये ध्यान में रखना, ये तुम्हारा सेंटर है ऑफ सर्कुलर पाथ. तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है उसी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर. Anybody? Yes, anyone? क्या बोल रहे हो? सर हम सर अभी हाँ बोलो. फ्रिक्शन को रिजॉल्व करेंगे. ओके, तो कैसे रिजॉल्व करोगे फ्रिक्शन को? जहाँ थीटा है वहां पे एफ कॉस थीटा आएगा, और जहाँ पे नहीं है वहां पे फ्रिक्शन को नहीं, पहले फ्रिक्शन को रिजॉल्व करने से पहले एन तो रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा? हाँ एन भी रिजॉल्व होगा. तो एन रिजॉल्व होगा तो तुम्हें सेंटर की तरफ तो चाहिए ही, और वो कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा कि नहीं होगा? होगा. तो ये थीटा है ना, तो ये होगा तुम्हारा एन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एन साइन थीटा. एन साइन थीटा. अभी तुम फ्रिक्शन को जब भी रिजॉल्व करोगे तो तुम्हारा फोर्स किस तरफ होगा, उसका डायरेक्शन किस तरफ जाएगा? इसको जो रिजॉल्व करोगे तो इनके दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन से होंगे? एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट, क्योंकि ये रेडियल हो गया, ये रेडियस की तरफ जा रहा है ना, ये इस तरफ होगा. I getting it? ये इस तरफ होगा और एक फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा. क्या ये क्लियर हुआ? हाँ यस सर. ये देखो, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की ये तो रेजोल्यूशन हो गया. अब देखो, अगर ये थीटा है स्टूडेंट्स, तो नाउ कैन यू टेल मी व्हिच एंगल इज थीटा? हाँ स्टूडेंट्स. सर अभी एफ कॉस थीटा है ना, वो एन साइन थीटा के अपोजिट होगा. वेरी गुड, क्योंकि ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स. अभी देखो, नाउ आई एम ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड द एंगल्स. फ्रेंड्स, ये थीटा है, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा. तो व्हाट एग्जैक्टली सेड इट, एंड हु इज स्पीकिंग इट आउट? दिस क्रतु इज स्पीकिंग आउट. वेरी गुड क्रतु. ये होगा तुम्हारा एफएस. क्या बात है, अभी सारे नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं. कशिश और लब्धि तो गए काम से, साइड पे रह गए अभी. दे आर नो थैंक मोर एग्जिस्टिंग इन द लेक्चर्स, है ना. तो एफएस कॉस थीटा और एफएस साइन थीटा किस तरफ गया? ऊपर चला गया. ये एफएस साइन थीटा है ना स्टूडेंट्स.
यानी स्टूडेंट्स जब भी तुम नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करोगे तो n cos थीटा n sin थीटा, फोर्स ऑफ स्टार्टिंग फ्रिक्शन को करोगे तो fs cos थीटा fs sin थीटा. Now can you tell me my centripetal force is directed from the car towards the center, है ना? तो ये फोर्स इससे ग्रेटर होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स मेरा पहला इक्वेशन क्या होगा मालूम है स्टूडेंट्स? n sin थीटा will be greater than force of static friction, its component. And the difference of the two forces, students, the difference of the two forces is the force required for the car to perform circular motion. Students, your component of the normal reaction force is greater than the component of static friction. And the difference of the two forces is actually the force centripetal required for the car to perform circular motion on a circular banked road considering friction. तो तुम्हारा ये एक इक्वेशन हुआ. अभी हम क्या करेंगे? ये fs को μs into n लिखता हूं मैं. तो n sin थीटा माइनस μs into n cos थीटा is equal to mv square by r. और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं. दूसरा इक्वेशन कौन सा फॉर्म हो रहा है? देखो जैसे यहाँ पे ऊपर वाले नीचे वाले फोर्सेस लिए थे, यहाँ पे देखो ये दो फोर्सेस ऊपर है और ये नीचे से बैलेंस कर रहे सर हैं. यस बोलो. f cos plus theta plus f sin थीटा होगा ना n sin प्लस plus cos theta. yes and that balances mg. Can I say force of static friction को वापस μs into n लिखो? Yes, sin theta plus n cos theta that is equal to mg divide. This is my equation number 2. अब स्टूडेंट्स क्या करता हूँ मैं ध्यान से देखना. नाउ ये इक्वेशन को स्टूडेंट्स ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को डिवाइड करता हूँ. स्टूडेंट ध्यान से सुनना. आई एम ट्राइंग टू डिवाइड 1/2. ये समझ में आया? यानी इन दोनों का रेशियो आएगा. लेकिन न्यूमरेटर स्टूडेंट्स न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा बाय n cos थीटा और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करूंगा बाय n cos थीटा. क्या ये क्लियर हुआ? जो पहले केस में किया था वही करना है यहाँ पे. अगर मैं यहाँ पे n cos थीटा से डिवाइड करूंगा स्टूडेंट्स तो n गेट कैंसिल. व्हाट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा? tan थीटा. एग्रीड? yes sir. Yes, sir. माइनस कैन आई से n cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो माइनस म्यू एस बचेगा डिवाइडेड बाय students divide by n cos theta. N gets cancelled. What is sin theta upon cos theta? Tan theta. So can I say this is mu s tan theta plus 1? Agreed? देखो ना upon n cos theta तो n gets cancelled. What is sin upon cos? Tan. n cos theta cancel हो जाएगा 1 आ गया is equal to students mv square by r upon mg. mm gets cancelled. v square by rg. students क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स. yes sir. हाँ सर. अभी तुम्हें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला. देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला लोगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा स्टूडेंट्स. ये आरजी वहां पे चला जाएगा. तो मैं ध्यान से लगा मैं यहाँ से आरजी निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स. ये आरजी मैंने यहाँ पे डाल दिया. ये आ गया ब्रैकेट में. ये अभी आ गया ब्रैकेट में. यहाँ से आरजी मैंने निकाल दिया. मुझे चाहिए वेलोसिटी कौन सा? मिनिमम वेलोसिटी चाहिए तो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया. तो ये आ गया मेरा रूट. डिड यू गेट द आंसर फॉर वी मिनिमम? Rg into bracket tan theta minus mu s upon mu s tan theta plus 1. Is this clear, students? Yes. Yes, sir. Now, students, दोनों के बीच में फर्क क्या है? ध्यान से देखो दोनों इक्वेशन में फर्क क्या है? स्टूडेंट्स सिंपल है. स्टूडेंट्स मुझे बताओ. एवरीबॉडी अभी ध्यान से प्लीज आप रिप्लाई करना. रिया एंड दोस पीपल हु आर रिस्पोंडिंग. मुझे इसके पहले जब मैंने डिराइव किया था स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड नॉट कंसीडरिंग फ्रिक्शन? व्हाट्स द फॉर्मूला? नॉट कंसीडरिंग फ्रिक्शन ऑन अ बैंक रोड. क्या फॉर्मूला था? हाँ स्टूडेंट्स
Anybody can tell me? बोलो. अंडर रूट RG tan थीटा। RG tan theta. Agreed? अभी ध्यान से देखना. Everybody listen carefully. सोचो अगर मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन निकाल दिया V max के अंदर. हेलो, फ्रिक्शन निकाल दो. म्यू को 0 ले लो स्टूडेंट्स. अगर मैंने ऊपर न्यूमरेटर में 0 डाल दिया तो मेरा ऊपर वाला फॉर्मूला क्या होगा? हाँ स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? RG tan थीटा। और यहाँ पे म्यूएस को 0 डाल दो क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो 1 माइनस 0 क्या होगा? 1। तो आंसर क्या बचा मेरा? अंडर रूट RG tan थीटा आया हाँ, अंडर रूट RG tan थीटा विदाउट फ्रिक्शन. अभी सेम फॉर्मूला यहाँ पे देखो. अगर मैं फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करता तो म्यू को 0 डाल दो ना. फॉर्मूला क्या बचा? RG tan थीटा. यहाँ पे वापस म्यू को 0 डाल दो, फ्रिक्शन नहीं है तो नीचे 1 आएगा. ओ यानी सर जब भी हम फ्रिक्शन नहीं करते हैं तो म्यू को 0 लेना है. यानी स्टूडेंट्स अभी इसके अगला जो हम लोग ने डेरिवेशन किया ना, वो फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं, तुम्हें यही फॉर्मूला याद रखना है बस. अगर तुम्हें बोला क्वेश्चन पूछा गया विदाउट फ्रिक्शन तो म्यू को 0 डाल दो. फ्रिक्शन को कंसिडर करना है तो म्यू डाल दो. अभी दूसरी बात ध्यान से सुना स्टूडेंट्स प्लीज. ये किसका फॉर्मूला है? वी मिनिमम है या वी मैक्सिमम? मैक्सिमम। मैक्सिमम में देखो न्यूमरेटर में कौन सा साइन आ रहा है? प्लस साइन आ रहा है. हाँ स्टूडेंट्स. यस sir. और डिनोमिनेटर में 1 माइनस आ रहा है. यानी जितना डिनोमिनेटर छोटा उतना ये वेलोसिटी बढ़ेगी. आया ना इनवर्स वेरिएशन. और ऊपर पॉजिटिव साइन का मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर तो वेलोसिटी ज्यादा होगी. अभी देखो इसको इससे कंपेयर करो. देखो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है लेकिन प्लस साइन की जगह पर अभी यहाँ पे क्या आया है? Minus. तो कहने से tan थीटा में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे तो न्यूमरेटर कम हो जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी. ऊपर से डिनोमिनेटर में देखो प्लस साइन आ रहा है. फ्रेंड्स अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो कहने से वेलोसिटी कम हो जाएगी. इनवर्स वेरिएशन. हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर. कुछ नैक पता चला हाउ टू रिमेम्बर द फॉर्मूला? स्टूडेंट्स अभी स्मार्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डेवलप करते हैं, अपने में हैबिट एक डेवलप करते हैं कि फॉर्मूला को कैसे याद रखना है. तो सबसे पहले फॉर्मूला को ये याद रखना है कि ये ध्यान में रखना कि जब भी गाड़ी अगर हाई स्पीड पे जाती है सर्कुलर ट्रैक के अंदर जो बैंकिंग होगा तो वो बाहर की तरफ से ज्यादा वो चलेगी, ऊपर की तरफ से चलेगी तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, नीचे की तरफ डाउन द इंक्लाइन प्लेन एक्ट होगा. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वी मैक्स? तुम भूल गए फॉर्मूला वी मैक्स तो तुम बोलो ना आरजी tan थीटा तुम्हें मालूम है तो v इज इक्वल टू RG इनटू ब्रैकेट है, लेकिन न्यूमरेटर सर ने बोला था प्लस साइन आना चाहिए तो RG tan थीटा प्लस म्यूएस आ गया. वही डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 माइनस म्यूएस tan थीटा. लेकिन सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या हो गया मालूम है? यहाँ पे tan थीटा माइनस म्यूएस आएगा क्योंकि RG tan थीटा पहला आना चाहिए बाद में. प्लीज डोंट गो फॉर म्यूएस माइनस tan थीटा. म्यूएस माइनस tan तुम्हारा रूट में नेगेटिव साइन आएगा तो RG tan थीटा माइनस म्यूएस फॉर मिनिमम. लेकिन नीचे क्या होगा? म्यूएस tan थीटा प्लस 1. ठीक है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ेगा वेलोसिटी कम होगा. यहाँ पे देखो 1 माइनस म्यूएस tan थीटा और यहाँ पे म्यूएस tan थीटा प्लस 1. तो यू कैन इंटरचेंज 1 प्लस म्यूएस tan थीटा 1 माइनस म्यूएस tan थीटा. क्या ये क्लियर हुआ हाउ टू रिमेम्बर बोथ द फॉर्मूलाज? और Yes sir. अगर मैंने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को निकाल ही दिया. स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन पूछा है कि फ्रिक्शन है ही नहीं, बैंक रोड के ऊपर फ्रिक्शन ही नहीं कंसीडर करना है तो भाई म्यू को डाल दो 0, यहाँ पे डाल दो 0, यहाँ पे डाल दो 0 तो RG tan थीटा ही आएगा. ये देखो ना ये 0 हो गया माइनस 0 तो ये आंसर आ गया. 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 1 तो डिनोमिनेटर तो 1 ही है तो RG tan थीटा आ गया. वैसे यहाँ पे म्यू को 0 डाल दो RG tan थीटा यहाँ है एंड थीटा इज ऑलवेज विद द हॉरिजॉन्टल. एग्रीड. लेकिन स्टूडेंट्स कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस को ध्यान में रखना. जब भी हम Vmax के लिए जाते थे स्टूडेंट्स तो n sin थीटा और कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन cos थीटा एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे. और जब भी V मिनिमम के लिए गए तो देखो कंपोनेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन cos थीटा इस तरफ गया है, n sin थीटा इस तरफ गया है. ये ध्यान में रखना.
क्या ये दोनों डायग्राम क्लियर हुए? ये बीमैक्स के लिए और यहाँ पे तुम जाओगे तो ये किसके लिए होगा? ये बी मिनिमम के लिए। हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर। क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ अभी? सर 2 minutes. Yeah, there were 27 students, 5 students have gone. देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। उसमें से रविकांत राय ने अनम्यूट करके रखा है लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहा है। रविकांत राय भाई क्या कर रहे हो? Alia doesn't respond at all. Amira doesn't respond at all. Dhruv doesn't respond at all. Janvi doesn't respond at all. Kashish doesn't respond at all. Kratu hardly एक शब्द बोल के बंद हो गया. Lovely doesn't respond at all. Mayank doesn't respond. Om doesn't respond. Paneri doesn't respond. Prachi doesn't respond. Prachi Zalki doesn't respond. Riya responds. Sakshi doesn't respond. Sania doesn't respond. श्याम टेक्स्ट करता है, रिप्लाई बहुत कम हो गया उसका भी। सोहम डजंट रिस्पॉन्ड। तेजस रिस्पॉन्ड करता था लेकिन वो भी बंद हो गया। विशाल डजंट रिस्पॉन्ड एंड यश रिस्पॉन्ड्स। Any total number of students who are responding in the strength of 22, any 21 students is just 3 students. This is a scenario of Foundation Builder 2 GT. Students, your exams are conducted. हो गए तुम्हारे exams? Major test हो गई students? हाँ students? Students, I'm asking you all. क्या तुम्हारे major test complete हो गए? कैसा था पेपर? Sir, I haven't attempt for major test. ये रिया क्यों नहीं किया? हाँ रिया, क्यों नहीं दिया सर एग्जाम? मेरा वो हुआ नहीं था पढ़ के। तो क्या हुआ उसमें? Sir, I was watching video lectures and it was taking much time. अरे तो फिर, अरे फिर भी क्या हुआ? जितना प्रिपरेशन था वो हिसाब से एग्जाम्स देनी थी ना। एग्जाम्स दो ना, एग्जाम्स एग्जाम्स को मत ऐसा मत करो। अरे देखो रिया, रिया तुम्हें पता है कि तुमने प्रिपरेशंस नहीं की थी? हाँ। Yes. Do you want to show to rest of the students of Foundation Builder 2 GT? उनको प्रूव करना है कि तुम्हें फिजिक्स आता है या नहीं आता है, उनको प्रूव करना है तुम्हें। उनको बताना है कि तुम कैसे हो। हाँ, उनको बताने की जरूरत है क्योंकि उन लोग खुद भी नहीं पढ़ते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स को पता है ना कि तुमने प्रिपेयर नहीं किया था। हाँ रिया, Yes, sir. बस ना, बस ना पेरेंट्स को पता है तो इट्स when पेरेंट्स नो इट then nothing to worry about it. पेरेंट्स को छुपा के तो तुम नहीं कर रहे हो ना। तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई तो सम रीजन की वजह से नहीं हुई, तो पेरेंट्स पता है Yes, कि sir. तो फिर, और पेरेंट्स समझते हैं। लेकिन तुम अगर एग्जाम्स नहीं दोगे ना रिया, ये बहुत बुरी आदत आ जाएगी क्योंकि ये तुम्हारा कोर्स और अभी तो और 1.5 साल तक चलने वाला है। डोंट Yes. लूज Yes, sir. I talked to Anu ma'am. So I asked her about it. I haven't completed my topics. None of them. So that's why she told me it's okay. But I have to attempt for the questions. हाँ, सो डजंट मैटर। अभी तुम्हारे पास में अगर पेपर हो ना तो ऐसे कैजुअली बैठ के तुम करो ना, सॉल्व Yes, करो, sir. अपने आप को जज करो। Yeah, हाँ my बस father told me that. बस बस डजंट मैटर। लेकिन दो जरूर, कभी भी एग्जाम्स को मिस नहीं करना स्टूडेंट्स। भले बुखार हो, कुछ भी हो, एग्जाम्स दो। Yes, लेक्चर्स sir. कभी मिस नहीं करते हैं, एग्जाम्स कभी मिस नहीं करते। टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु वांट टू लिसन टू मी, don't ever run away from lectures, don't ever run away from exams. Are you getting it? जितनी तुम Yes, sir. एग्जाम दोगे, रिया आई एम नॉट टेलिंग यू टू, अभी तुम्हें तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं नॉट पर्सनली टू यू। ओके, तुम्हारा तो हुआ ही नहीं प्रिपरेशन, तो वी नो इट। लेकिन कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स है जो फंक्शंस होते हैं उनके यहाँ पे और फिर दूसरे दिन वो लेट उठते हैं और फिर एग्जाम नहीं देते, पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं। ऐसा भी स्टूडेंट्स है, सैंपल्स है ऐसे लेक्चर्स में, जो आउटिंग में चले गए हैं,
या आउट स्टेशन में है और फिर बोलेंगे ये फलाना हो गया ढिकना हो गया मुझे नहीं देना है, तो देयर आर पीपल हु डोंट गिव एग्जाम्स और पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं. इट्स नॉट गुड. सी कशिश वाज आल्सो ईगरली वर्किंग इट आउट. रियल सिस्टर की शादी, स्टूडेंट्स देवी रियल सिस्टर की शादी है, एनसी सेट की सर मॉर्निंग अगर होगा तो मैं अटेंड मैं करूंगी करके, लेकिन जैसे मैंने 11 o'clock बोला तो उसने फिर रीजन, तब तक उसने रीजन नहीं बताया था. घर के अंदर शादी है, घर की शादी है देखो, फिर भी शी वाज रेडी टू अटेंड लेक्चर्स मॉर्निंग 7:30. यही अगर कोई दूसरा स्टूडेंट होता ना स्टूडेंट्स, तो कब का शादी का बहाना बना के उस दिन लेक्चर भी नहीं अटेंड करता, उसके अगले 2 दिन भी लेक्चर अटेंड नहीं करता. ऐसे भी स्टूडेंट्स पड़े हुए हैं इसी ग्रुप के अंदर. स्टूडेंट्स तो वो एक सीखना जरूरी है और वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है कि पेरेंट्स हाउ डू दे ट्राई टू टेल द किड्स टू गो अहेड विद द सेशंस. स्टूडेंट्स never ever to miss lectures. नहीं समझ में आता तो पूछो ना. जब पूरा डेरिवेशन कर रहा हूँ, जब 3 स्टूडेंट्स हाँ यहाँ सर यस सर समझ में आ रहा है, तो बाकी बाकी 18 स्टूडेंट्स 19 स्टूडेंट्स नहीं पूछते, उसका मतलब फाइन, दे आल्सो अंडरस्टैंडिंग इट. अगर नहीं समझ में आता तो ना बोलोगे ना. अभी देखो कशिश अभी टाइप कर रही है, मुझसे अनम्यूट करके नहीं बोल सकती है. लब्धि ने तो बंद ही कर दिया कॉन्वर्सेशन करने के लिए, वो तो सो गई है लब्धि भी. क्या था टफ कशिश, क्या था टफ वेक्टर्स में? हाँ, what was tough in vectors? लेकिन सारे तो प्रॉब्लम्स किए हुए हैं, तो कहाँ पे गलत गए हो? वेरी एग्जैक्टली फाउंड आउट दैट यू आर नॉट एबल टू. सर कुछ सम्स थे उसमें, मतलब ऐसे सिमिलर नहीं थे, फेमिलियर नहीं थे, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो लेकिन गया। कौन से वाले साइन रूल के प्रॉब्लम्स थे, कोसाइन रूल के प्रॉब्लम्स थे, लैमिस थ्योरम के थे? मैंने साइन रूल भी बता दिया, कोसाइन रूल भी बता दिया था और सर लैमिस थ्योरम भी बता वेक्टर्स, दिया था. हाँ तो वेक्टर्स में ही बता रहा हूँ, हमने कोसाइन रूल तो यूज किया था ना. हाँ सर सब रेक्टेंगुलर यूज कोऑर्डिनेट, किया था cos उसमें वो। स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा एंड cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा लोगे तो sin का आ गया. और फिर लैमिस थ्योरम वाला भी हमने भी किया है. कौन से फॉर्मूलाज में, कौन से प्रॉब्लम्स में तुम अटक गए थे? कौन से रिलेटेड की प्रॉब्लम्स है? वो कार वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस थे, उसमें ही अटकने हो गया, मतलब कार मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड वाले, याद नहीं आ रहा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था लेकिन अभी वो डिलीट हो गया, तो वही इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, उसमें प्रॉब्लम आई, इसलिए फिजिक्स के मार्क्स थोड़े से लो हो गए। वेरी गुड. यानी फिजिक्स को रिस्पॉन्सिबल बनाओ नहीं स्कोर करने के लिए, है ना? इसलिए लब्धि कब से चुप बैठी है. सर वरना और- कैलकुलस के तो 8 ही सम थे, बाकी सब वेक्टर के थे। हाँ तो लेकिन वेक्टर्स करना चाहिए था ना फिर. और कितने ऐसे क्वेश्चंस आए जो नहीं आए? कितने क्वेश्चंस नहीं आए? 10 क्वेश्चन नहीं आए, 15 क्वेश्चन नहीं आए, कितने नहीं आए? सो होंगे 10 के करीब ही थे अभी। लेकिन कितने नहीं आए? 10 नहीं आए? नहीं सर, कुछ आए कुछ रॉन्ग हो गए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गए। वेरी गुड वेरी गुड. और सर जब आप ये सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे थे, तो आपने जब कैलकुलस का लिया तो मैं उसमें बहुत कंफ्यूज हो गई, तो मुझे लगा मेरा कैलकुलस स्ट्रांग नहीं है, मैंने सारा फोकस कैलकुलस पे डाला तो मेरा वेक्टर्स वीक हो गया। वेरी गुड वेरी गुड. क्या बात है. सर वो कभी कभी ना क्वेश्चंस का फॉन्ट साइज एकदम कम रहता है. अच्छा, तो नाट्यम यू आर नॉट एबल टू सी द अल्फाबेट्स प्रॉपर्ली. नहीं दिखाई देता है सब कुछ भी, वो वेक्टर्स का सम देता है ना, तो उसको एकदम छोटे फॉन्ट में देते हैं, और फिर जो क्वेश्चन काम के नहीं होते उनको बड़ा बड़ा ऐसे लिख के दे देते हैं, फिर कुछ समझ ही नहीं आता है। अच्छा, तो बोलना चाहिए ना ये. और वो स्क्रीन भी जूम नहीं होती है। लेकिन बोलना चाहिए ना फिर.
सर अब कोई नहीं बोलता, फिर बोलेंगे तुम ही लोगों को प्रॉब्लम है, एक बच्चे को प्रॉब्लम है बस। Okay, it's not like that, but in the those with good terms, अगर तुम ज्ञानेश्वर सर के साथ बात करते हो या ज्ञानेश्वर सर को पूछते हो तो बोल देना दैट इज कि ये है जेन्युइन प्रॉब्लम, ये आ रहा है, या फिर अविनाश सर को बता देने का कि ये प्रॉब्लम है, अनु मैम को बता देने का कि ये प्रॉब्लम है करके, दे विल हैंडल इट, दे विल स्पीक आउट। तुम रोओगे नहीं टाइम पे तो कुछ नहीं होगा ना, लेकिन प्रिपरेशन होनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पे शाम को पता ही नहीं करिए कि नेगेटिव मार्किंग होता है। सर नेगेटिव मार्किंग होता है, इसलिए कभी कभी जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते उनको तो मैं गलत पे भी नहीं करती, मैं छोड़ ही देती हूँ। आस्क्ड रेंज, तो शाम मुझे पता नहीं चल रहा, रेंज पूछा है एंड इट वाज बिटवीन 1n and 7n, ये पता नहीं चल रहा 1n and 7n का मतलब क्या है, नोट 7n। Sir, it's a question. One question was there. ओके फाइन, क्या मैं इसको एरेज कर सकता हूँ? Yes, sir. ओके लेकिन स्टूडेंट्स बॉटम लाइन ये है, जब भी तुम्हें मेजर टेस्ट आती है ना स्टूडेंट्स, प्लीज मेजर टेस्ट को सीरियसली लो, मेजर टेस्ट को लाइटली मत लो। मेजर टेस्ट अगर आती है तो तुम लोग क्या करते हो मालूम है, उसके पहले 5 दिन पहले तुम पढ़ाई शुरू करते हो, जबकि तुम्हें मेजर टेस्ट स्टूडेंट्स उसका शेड्यूल तुम्हें पहले दे देते हैं। हाँ, एग्जाम्स का शेड्यूल कभी आता है तुम्हारे हाथ में? 3 दिन पहले आता है। हाउ मेनी डेज बिफोर दैट यू गेट इट? Almost 15 to 20 days. हाँ, तो फिर अगर 15 से 20 दिन पहले मिल जाता है तो क्या तुम अपने आप को अलाइन नहीं कर सकते हो कि जो रेगुलर स्टडीज होती है, रोज की स्टडीज होती है, उसके साथ में रोज रोज का रोज आधा घंटा फिजिक्स, आधा घंटा केमिस्ट्री, आधा घंटा मैथ्स, यानी 1.5 घंटा उसको दो फॉर द मेजर टेस्ट। अगर सपोज तुमने 15 दिन तुम्हें मिलते हैं स्टूडेंट्स, तो यू आर ऑलमोस्ट गिविंग 15 plus 5 20 hours, 20 hours you are giving it to maths, 20 hours you are giving it to physics, 20 hours you are giving it to chemistry. लेकिन ये कोई समझता नहीं है। तुम करते क्या, मेजर टेस्ट आती है नजदीक में आती है तभी 4-5 दिन पहले तुम शुरू हो जाते हो करने के लिए। ये तो वही बात हुई ना, लास्ट मोमेंट एफर्ट। स्टूडेंट्स ये सब स्कूल में चलता था, अभी नहीं चलेगा। तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है। देखो ना, लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या कहाँ पे चला गया है, थॉट प्रोसेस कहाँ पे जाता है, कितना कुछ सोचना पड़ता है क्वेश्चंस के लिए। तो you can't just do it in less time, you need some time. और पेरेंट्स भी तुम्हें देखते होंगे, लास्ट 4 दिन 5 दिन तुम बैठते हो, तभी तुम लोग रात को 12 बजे 1 बजे बैठते हो, पेरेंट्स को वो दिखाई देता है कि मेरा बच्चा तो बैठा था एग्जाम के पहले लेकिन फिर भी उसको मार्क्स नहीं मिला है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपका बच्चा 15-20 दिन पहले से बैठा था रात को 12-1 बजे तक? तभी से देखो ना, वहां से देखो, तभी देखो। यू ट्राई टू वर्क आउट विद वन ऑफ द एग्जाम्स इन दैट मैनर। एक आधा एग्जाम्स वैसे ट्राई करके। स्टूडेंट्स ये एक्सपेरिमेंट है और ये एक टाइप का खेल है स्टूडेंट्स, दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्ले। इसको कैसे खेलना है, you have to see to it that you sit across, तो वहां पे तुम अगर बैठोगे ना 15 दिन पहले तुम बैठोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या बाकी है क्या नहीं। और उसमें भी तुम जब बैठोगे तो तुम्हें तुम्हारी वीकनेसेस को पहले लेना है कि अगर मेरे हाथ में 5 चैप्टर्स, तो 5 चैप्टर में से कौन से 2 टॉपिक्स, चलो मेरे 2 टॉपिक्स वीक है, लेकिन 2 टॉपिक्स के लिए ये 2 टॉपिक्स मेरे वीक है लेकिन उसका बेस ये चैप्टर में है, तो पहले ये चैप्टर में लूंगा फिर ये 2 लूंगा मैं। लेकिन मेरा टफ टॉपिक को मैं पहले उठाऊंगा, उसको मैं कंप्लीट करूंगा और फिर मैं इजी टॉपिक्स पे जाऊंगा। इट्स लाइक दैट। And Kashish, I didn't say about that. Of course, all parents are like. It's not like that. They see the efforts of the kids. ऐसे नहीं कि they don't see the efforts of the kids. All parents see the नहीं efforts of the सर, kids. ऐसा नहीं है, मतलब अगर मैं नहीं, अपने now पेरेंट्स it's not done. Now it's not done.
नाचना सर कर, मार्क्स आपने, लेके आना चाहिए था, अरे बट मार्क्स सर लेके मेरी आना एक बार चाहिए था। बात तो सुनिए, मेरी एक बार नहीं, बात तो मार्क्स सुनिए। लाने की जरूरत थी, मार्क्स नहीं लेके आया है तो एफर्ट्स कितने दिन पहले, कशिश मुझे बताओ, एफर्ट्स कितने दिन पहले डाली तुमने, सिंसियरली बताओ। सब मैं वही तो बताना चाह रही हूँ कि नहीं, मेरे कितने दिन, एफर्ट्स मुझे हाँ या ना बोलो, एफर्ट्स कितने दिन पहले डाली तुमने? 20 to 15 डेज, जब आया था शेड्यूल तभी। तभी डालना शुरू कर दिया था तो तुम्हें मार्क्स आने चाहिए थे, तुम्हें 110% मार्क्स आने चाहिए थे। सर मैंने अपना यानी सारा यानी फोकस तुम्हारा वे ऑफ करिकुलर पे अप्रोच, शिफ्ट कर या दिया तुम्हारा ना। समवेयर वे ऑफ अप्रोच तुम्हारा फिर गलत गया है कि तुमने जो मेहनत डाली है वो एग्जैक्टली कहाँ पे तुमने यूटिलाइज किया है। अभी तुमने बोला कि मैंने कैलकुलस करने बैठा तो मेरा वो रह गया, वो रह गया तो फिर 15-20 डेज में तो वेक्टर्स हो जाना चाहिए था। वो रह गया का मतलब यानी वेक्टर्स को छुआ नहीं या वेक्टर्स के ऊपर उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया तो वो रह कैसे गया? एक तरफ तुम बोलते हो कि मैं 15-20 दिन से मैं मेहनत कर रही थी, और दूसरे में उसके पहले तुमने बोला कि मेरा कैलकुलस के अंदर मुझे लगा वीक था लेकिन उसमें मेरा वेक्टर्स छूट गया, मेरा वेक्टर्स यानी तुम्हारा वेक्टर्स का प्रैक्टिस नहीं हुआ। तुम दोनों तरफ से बात करना शुरू कर दिए थे। दिस इज नॉट नहीं सर, डन। मिस्टेक तो हुआ ही है, वो मिस्टेक मार्क्स में हुआ है। One thing I'm not saying about that. This is what the problem with every individual in studies. भले तुम रैंकर हो या रैंकर नहीं रहो, सबका ये है। People say that I've sat for 15 to 20 days beforehand, but was it a genuine studies? Was it a sincerity ka studies? Was it a slog? What is a proper slog? That is more important. And once when you do it ना students, एक एग्जाम को ट्राई करके देखो, एक एग्जाम को ऐसा स्लॉग करके ट्राई करने को देखो। अभी नेक्स्ट एक डेडलाइन आती है, उसको फिर देखो कि चलो एक ये सर को बताएंगे हम लोग, समझता क्या अपने आप को, ट्राई टू टेक इट इन दैट मैनर। और पहला दिन से जब भी डेट आती है 15 दिन पहले लॉक करना शुरू करो, फिर देखो तुम्हारे मार्क्स में कितना इम्प्रूवाइजेशन होगा, ऑटोमेटिकली विल बी गेटिंग इट स्टूडेंट्स। और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी करने होते हैं, ना कि और लेट। जितना तुम लेट एक्टिव होगे ना, जागोगे लेट और पीछे रह जाओगे। तो एक मेथड ढूंढो, हाउ टू गो अबाउट विद स्टडीज एंड हाउ टू टैकल विद मेजर टेस्ट्स। मेजर टेस्ट को टैकल करने के लिए भी यू हैव टू पुट इन सिंसियर एफर्ट्स। एंड नाउ henceforth स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, अगर सिंगल टॉपिक में होगा तो बहुत स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर सकेंगे, लेकिन चैलेंज उसी में है जब भी नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ते हैं फिजिक्स में, क्या तुम्हारा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, ऊपर जा रहा है तो सही है। अगर कंसिस्टेंट नहीं है, ऊपर नहीं जा रहा, तुम ड्रॉप होते जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। एक कंसिस्टेंसी भी रहती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ता है सबका परफॉर्मेंस नीचे आता है, लेकिन वो नीचे नहीं आना चाहिए, उसके लिए एफर्ट्स डालनी जरूरी है। और वो सिंसियर एफर्ट्स होती है, टाइम बाउंड एफर्ट्स होती है, कि अगर डिसाइड किया है कि रोज का आधा घंटा तो प्रॉपर आधा घंटा, और उस प्रॉपर आधे घंटे के अंदर कितने एमसीक्यूज, कितने प्रॉब्लम्स डिसाइड करने होते हैं कि किसी भी हाल में मुझे 10 फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के, 10 मैथ्स के करने जरूरी है, या 15-15-15 50 एमसीक्यूज तीनों के मिला के चाहिए, भले वो फिर रात को 1.5 घंटे की जगह 2 घंटा हो गया। या तुम कहीं बाहर जाके आए हो, रेस्टोरेंट में जाके आए हो, फिर तुम्हें बता कि नहीं मेरा और 20 प्रॉब्लम मैंने कर लूंगा, वैसे नहीं, वापस रेस्टोरेंट से आने के बाद में रात को बैठा और 20 प्रॉब्लम कंप्लीट करो। दैट इज हाउ व्हेन यू डू इट ना, देन ओनली यू विल स्कोर। ओके, सो ऑल पेरेंट्स थिंक्स, not only somebody's parent, all parents think in that manner. All parents see the efforts of the students. I'm really upset with this. This is not सर done. अब Physics मैं is a बोलूं, come out. Yeah, I don't want you all to score less in physics. This is something wrong. Okay, students, what's the velocity of the car on a circular bank road का formula क्या होगा students? Under root rg tan theta, ये एक formula मैंने दे दिया था। अगर मैं बोलूँ करके कि ये formula कहाँ पे use हो रहा है साइक्लिस्ट के अंदर, तो ये लास्ट स्टूडेंट्स ये एंगल थीटास विद हॉरिजॉन्टल स्टूडेंट साइक्लिस्ट का ये आ गया। फिर इसी को हम लोग ने सर्कुलर ट्रैक बैंकिंग के हिसाब से दे दिया स्टूडेंट्स, नॉट कंसिडरिंग फ्रिक्शन। एग्रीड, थीटा इज विद हॉरिजॉन्टल, और ऊपर से हम लोग ने कोनिकल पेंडुलम के हिसाब से ले लिया। एग्रीड, ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, थीटा इज विद वर्टिकल। एग्रीड। दूसरी बात, v is equal to on a car on a circular road not considering friction will be equal to under root mu rg.
ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, V max हम लोग ने कर लिया. Okay, then I told you about V maximum and V minimum on a circular bank road considering friction. तो यहाँ पे क्या होगा, RG tan theta plus mu s upon. Yes, students, what is the denominator? सर हाँ, 1 minus mu s tan theta. mu s tan theta. हाँ भाई. और ये क्या होगा, RG RG tan tan theta theta minus mu s upon. upon 1 plus mu s 1 tan. plus Agreed. फिर ये सारे फॉर्मूलाज अभी ध्यान में रखना. इसी के अलावा हम लोग ने कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी बताया था मैंने. Are you getting it? Then I told you for a cylindrical drum also when set to rotate angular velocity मैंने ओमेगा दिया था. Are you getting it? mu upon rg के हिसाब से मैंने दिया था r upon mu g. I've given you in that case. उसका भी फॉर्मूला मैंने दिया था for a circular we consider drum in that case. Okay, clear हुआ स्टूडेंट्स इतना? Yes sir. yes sir. Now students will be going for your vertical circular motion students. Okay, now we go with respect to the next concept students. ये जो तुम्हारा concept है ये है vertical circular motion. Can anybody tell me students what exactly vertical circular motion is? Students, anybody can tell me what is the vertical circular motion students? बता सकते हो? Yes. Come on, Ria. Today it's only 3 students are responding. Ria, Yash, and Shyam. कशिश तो सिर्फ बोल रही है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है. Yes, what is vertical circular motion? Anybody? Okay, तो यहाँ पे श्याम क्या इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होगा? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कंसीडर करोगे? ओके, अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करेगा श्याम, ओके, तो क्या इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कंसीडर होता है? Very good. So students, he is answering it and he has given the answer. Students, vertical circular motion students के अंदर क्या होगा मालूम है तुम्हारा? तुम्हारा velocity goes on changing. Students, vertical circular motion में क्या है students मालूम है? It's a motion of a body. Students, it says the word motion of a body. It's a circular motion of a body in vertical plane. Students, students, a circular motion in what plane? Vertical plane. यहाँ पे vertical plane के बारे में हम बात करेंगे. यानी वर्टिकल प्लेन के अंदर है. लेकिन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या मालूम है? यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ बॉडी गोज ऑन चेंजिंग. स्टूडेंट्स, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी गोज ऑन चेंजिंग एट ईच इंस्टेंस. अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा वर्टिकल प्लेन हुआ स्टूडेंट्स. लेट अस से दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस स्टूडेंट्स. यानी ये सोचो कि तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है एंड द बॉडी इज मूविंग इन अ वर्टिकल प्लेन. आई गेटिंग इट? So this is how I'll consider in this case. The z-axis will be the axis perpendicular to the plane of revolution. Students, अगर मैंने इसको x-axis लिया,
ये इसको मैंने y एक्सिस लिया तो मेरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कौन सा प्लेन में, xy प्लेन में। तो मेरा जो एक्सिस सेंटर से पास होता है परपेंडिकुलरली, यानी ये वाला, वो कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस। दिस इज z एक्सिस इन दैट केस। अभी यहाँ पे जब तुम बॉडी को वर्टिकल प्लेन में मूव करते हो स्टूडेंट्स, और मैंने बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया स्टूडेंट्स, तो देखो ना क्या इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा, हाँ चेंज होगा, चेंज होगा। अगर बॉडी को हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे लेते हैं तो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विल कंसीडर। द बेस्ट एग्जांपल वी कैन कंसीडर इज अ जायंट व्हील, शायद तुम लोगों को मैंने पहले भी बोल दिया था। तो यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज अ मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ वर्टिकल प्लेन, एग्जांपल जायंट व्हील, व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज नॉन यूनिफॉर्म। स्टूडेंट्स यह है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसका मतलब velocity will go on changing at each instant. Friends, velocity will go on changing at each instant. अगर ये vertical circular motion है तो ये तुम्हारा lowest position हो गया, ये तुम्हारा diametrically opposite positions हुआ, diameter 1 diameter 2, और ये सबसे ऊपर यानी topmost position या highest position, the body is at the topmost position. For example, एक simple example मैं लेता हूँ students, तुम एक string लो और नीचे एक stone को बांधो और फिर उसको vertical plane में move करो, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हुआ। जब भी वो ऑब्जेक्ट नीचे होगा तो व्हाट अबाउट इट्स वेलोसिटी स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा होगा स्टूडेंट्स। द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज मैक्सिमम, इट इज अंडर रूट 5g स्मॉल r। r is the radius of the circular path students, r is the radius of the circular path। यानी जब तक ये बॉडी को नीचे अंडर रूट 5g नहीं दोगे, तो जब तक तुम बॉडी को लोएस्ट पोजीशन पे अंडर रूट 5g नहीं दोगे, तब तक ये बॉडी एक पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? वन कंप्लीट साइकिल विल नॉट बी परफॉर्म बाय दैट पर्टिकुलर बॉडी। यानी एक सफिशिएंट वेलोसिटी नीचे होनी चाहिए तभी जाके बॉडी एक पूरा कंप्लीट सर्कल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अभी देखो जैसे ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विल प्ले अ रोल। सिंपल एग्जांपल, अगर तुम बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो जैसे वो बॉडी डायमीटर की तरफ पहुंच गया तो देखो ये डायमीटर के ऑपोजिट पॉइंट्स हो गए। एग्रीड? ये डायमीटर के ऑपोजिट पॉइंट्स हो गए। सो व्हेन दे आर डायमीटर ऑपोजिट पॉइंट्स, व्हाट एग्जैक्टली वी कंसीडर, सर यहाँ पे होगा अंडर रूट 3gr। एग्री? डायमीटर के ऑपोजिट पॉइंट्स, वेलोसिटी कम हुआ, r इज द रेडियस। जब भी वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा तो क्या होगा इसकी वेलोसिटी, कोई बता सकता है? बॉडी पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कोई बता सकता है स्टूडेंट्स? टॉप मोस्ट पोजीशन पे, GR हाँ, what will be the topmost position velocity? हाँ रिया, what do you want to say? sir, G root GR Absolutely correct। क्या वो जीरो होगा? जीरो नहीं होगा स्टूडेंट्स। अगर वेलोसिटी बाय चांस जीरो हो गया ना तो बॉडी नीचे गिर जाएगा। बॉडी नीचे नहीं गिर रहा है, क्या वो साइकिल कंप्लीट कर रहा है? हाँ, तो मिनिमम वेलोसिटी है। श्याम ने भी वो आंसर दे दिया, लेकिन कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? रिया ने उसका परफेक्ट आंसर दे दिया, अंडर रूट GR। So what is the velocity at the topmost position students? और कम हो रहा है लेकिन है वेलोसिटी। वेलोसिटी जीरो नहीं बन रहा है, नहीं तो वो बॉडी नीचे गिर जाता। वापस डायमीटर क्या आएगा, देखो वापस नीचे की तरफ आ रहा है तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से वापस स्पीड बढ़ेगी, अंडर रूट 3gr, लोएस्ट पॉइंट पे अंडर रूट 5gr। स्टूडेंट्स such a motion in which the direction of velocity goes on changing, magnitude of velocity also goes on changing, and the body is set to move in a vertical plane. Such a motion is called as a vertical circular motion and it is non-uniform. Non-uniform होगा students तो यहाँ पे तुम्हारा angular acceleration होगा, tangential acceleration होगा, very important, यहाँ पे tangential force भी होगा। लेकिन for a body to perform circular path students, always there will be acceleration centripetal, which is a real force. Is this clear to all of you all? Students, is it clear to all of you all?
sir. Yes. Yes. Anybody wants to speak something? किसी को No, कोई sir, it's पूछना है? clear. Okay, fine. Okay, students. अभी now next lecture हमारा अभी सिर्फ vertical circular motion बाकी है, students. Okay, I'll be completing your vertical circular motion, students, and few concepts from your gravitation, and that'll be the end of the topic. Okay, but students, please see to it that revise your formulas properly, students.